نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے،
زکات دینے والے بھی کھڑے ہوں گے جو دنیا میں اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کیا کرتے تھے. حج کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کی پوری کمائی لگائی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے, صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے لیے گئے. سارے لوگ کھڑے ہوں گے, حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اللہ کہے گا فرشتوں سے, آئے فرشتوں, یہ دیکھو میرے نماز پڑھنے والے بندے موجود ہیں. آئے فرشتوں دیکھو یہ نماز پڑھنے والے کھڑے ہوئے, ان کو تم اپنے پاس بلاؤ اور ان کو ان کی نماز کا انعام دے دو, ان کو ان کی نماز کا ثواب دے دو. فرشتے جائیں گے اور ان نماز پڑھنے والے بندوں کو اپنے پاس بلائیں گے, اپنے پاس کھڑا کریں گے اور فرشتے کہیں گے آئے بندو, آئے اللہ کے بندو, یہ لو, یہ تمہاری نماز کا انعام ہے. جو تم دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, لوگ تمہیں بہت تانے مارا کرتے تھے, ان کے پاس کیا ہے, یہ نماز ہی پڑھتے ہیں, نہ تمہارے پاس بلڈنگ ہے, نہ تمہارے پاس مکان, نہ تمہارے پاس گاڑی ہے. ہمیں دیکھو ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, تب بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ دنیا میں تانے سنتے تھے لیکن نماز کو چھوڑتے نہیں تھے. آئے بندو, یہ تمہاری نماز کا انعام ہے, یہ تم نماز کا انعام لے جاؤ. فرشتے ان نمازیوں کو نماز کا انعام دے دیں گے اور بندے چلے جائیں گے. پھر اللہ کہے گا آئے فرشتوں دیکھو یہ میرے زکات دینے والے بھی تو کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے مال کی پوری پوری زکات کو ادا کیا تھا, زکات ادا کرتے تھے. آئے فرشتوں ان کو ان کی زکات کا انعام تم دے دو. فرشتے ان بندوں کو اپنے پاس بلائیں گے اور ان کو ان کی زکات کا انعام دے دیں گے. پھر اللہ کہے گا اے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرے حج کرنے والے بندے کھڑے ہوئے جنہوں نے خانہ کعبہ کا حج کیا تھا, طواف کیا تھا, صفا اور مروہ کی سعی بھی انہوں نے کی تھی. آئے فرشتوں ان حاجیوں کو جو حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئے تھے ان کو ان کا ثواب دے دو. فرشتے ان کو بلائیں گے اور ان کو ان کی نماز, ان کو ان کے حج کا انعام دے دیں گے. سب کو انعام دے دیا جائے گا, نمازیوں کو بھی, زکات دینے والوں کو بھی, حج کرنے والوں کو بھی, سب کو ان کی عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے گا. اب رہ جائیں گے روزے دار بندے, روزے دار جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے. اب فرشتے کیا کہیں گے, سنیے, آئے اللہ ہم نے نماز کا انعام بھی دے دیا, ہم نے زکات کا انعام بھی دے دیا, ہم نے حج کا انعام بھی نواز دیا. آئے اللہ یہ تیرے روزے دار بندے بھی تو کھڑے ہیں, یہ تیرے روزے دار بندے بھی تو کھڑے ہیں. آئے اللہ کہ ہم روزے کا انعام تیرے بندوں کو دے دیں. اللہ کہے گا آئے فرشتوں خبردار الگ ہٹ جاؤ, تم میرے بندوں کو روزے کا انعام نہیں دو گے. تم نے حج کا انعام دے دیا ٹھیک ہے, زکات کا انعام دے دیا ٹھیک ہے, نماز کا انعام دے دیا ٹھیک ہے, لیکن روزے کا انعام تم نہیں دو گے, بلکہ روزے کا انعام میں اپنے بندے کو دوں گا. پھر فرشتے سوال کریں گے اے اللہ کیا بات ہے, نماز کا انعام تو نے ہم سے دلوایا, زکات کا انعام تو نے ہم سے دلوایا, حج کا انعام بھی تو نے ہم سے دلوایا, پھر کیا بات ہے کہ روزے کا انعام تو دے گا ہم کیوں نہیں دیں گے. اللہ کہے گا فرشتوں اس لیے کہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا تھا, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَاجِزُ بِهِ. آئے فرشتوں روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا تھا اور میں ہی اپنے بندے کو روزے کا ثواب دوں گا. پھر فرشتے کو اور سوال کریں گے اے اللہ کیا تیرے بندے نے نماز تیرے لیے نہیں پڑھی تھی, کیا بات ہے, کیا تیرا بندہ سجدوں پہ سجدے کیا کرتا تھا, رکوع پہ رکوع کیا کرتا تھا, کیا بات ہے, کیا تیرے بندے نے نماز تیرے لیے نہیں پڑھی تھی, کیا تیرے بندے نے حج تیرے لیے نہیں کیا تھا, کیا تیرے بندے نے زکات تیرے لیے نہیں کی تھی, کیا صرف روزے تیرے لیے رکھے تھے. اللہ کہے گا ہاں. آئے فرشتوں نماز میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی, ہو سکتا ہے نماز میرے بندے نے اس لیے پڑھ لی ہو تاکہ محلے والے اس کو بہت بڑا نمازی کہیں یا تانا نہ مارے, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے بندے نے نماز اس لیے پڑھ لی ہو تاکہ لوگ اس کو تانا نہ مارے, لوگ اس کو بہت بڑا مکار نہ کہیں, لوگ اس کو گالی نہ دیں. اے فرشتوں ہو سکتا ہے کہ میرے بندے نے نماز اس لیے پڑھ لی ہو تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں, لوگ اس کو نماز پڑھنے والا کہیں. اے فرشتوں ہو سکتا ہے کہ میرے بندے نے زکات اس لیے دے دی ہو
ताकि लोग उसको ज़कात देने वाला कहें, कितना बड़ा अमीर आदमी है, देखो ज़कात अदा करता है अपने माल की। आए फरिश्तों, हो सकता है कि मेरे बंदे ने हज भी इसलिए कर लिया हो ताकि लोग उसको बहुत बड़ा हाजी और नमाजी कहें और ताना न मारे, देखो इतना पैसे वाला होकर हज करने की तौफीक इसको नहीं मिल रही है। आए फरिश्तों, इन इबादतों में, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, लेकिन इन इबादतों में गैर की शिरकत हो सकती थी, लेकिन रोजा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा था, इसलिए इसके घर पर कोई नहीं था, बीवी इसकी मार्केट गई हुई थी, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए हुए थे। आए फरिश्तों, इसके घर में फ्रिज थी, शरबत अफ़ज़ा भी रखा हुआ था, ठंडा पानी भी रखा हुआ था, लेकिन इसको फ्रिज तक जाने में सिर्फ मेरे खौफ ने, मेरे डर ने, मेरे तकवे ने रोका था। इसलिए मैं अपने बंदे को अपने हाथ से रोजे का इनाम दूंगा। सहाबा इकराम सवाल करते हैं, जिसकी देखिए सहाबा इकराम की कितनी गौर करती थी, कोई बात अगर नबी कह दे, सवाल पूरी जड़ तक उसकी पहुंच जाया करते थे। सहाबा इकराम ने सवाल किया और क्या किया? आए अल्लाह के नबी, आपने यूं तो बता दिया कि रोजेदार बंदे को अल्लाह अपने हाथ से इनाम देगा, लेकिन ये बताइए क्या इनाम देगा? इस पर आपने कुछ रोशनी नहीं डाली है। अल्लाह अपने रोजेदार बंदे को क्या इनाम से नवाजेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, आए मेरे साथियों, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, इस बात का इल्म तो मुझे भी नहीं है कि अल्लाह अपने बंदे को क्या इनाम देगा, लेकिन हाँ सुनो, तुम तो ये सवाल कर रहे हो, मुझे इतना गुमान है, मुझे इस बात का इतना गुमान है कि जब अल्लाह अपने हाथ से अपने रोजेदार बंदे को इनाम देगा, अपने हाथ से उस रोजेदार बंदे को जब अल्लाह इनाम देगा, तो बंदे को इनाम की कदर तो होगी, जो उसको दिया जाएगा उसकी कदर तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी नेमत उस बंदे के लिए होगी कि बंदा डायरेक्ट अपने रब का दीदार कर रहा होगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि बंदा डायरेक्ट अपने रब का दीदार करेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मामूली चीज नहीं, जिसने दुनिया को बनाया, इस कायनात को बनाया, जमीन और आसमान की जिसने तख्लीक की, हम सबको बनाया और दुनिया को चला रहा है, उसको बंदा देख ले, मामूली बात है, कोई मामूली नेमत नहीं है, कोई मामूली नेमत। हमें कोई इनाम दे दे, कोई बड़ी हस्ती इनाम से अगर नवाज दे, हमें कितनी खुशी होती है, मुझे फलां ने दिया है, मुझे फलां ने दिया है। हम उस इनाम को अपने घर में हिफाजत से रखते हैं, उस इनाम को हम दिखाते हैं दूसरों को, देखो मुझे फलां ने दिया है। सोचो, अंदाजा लगाओ कि रोजेदार बंदे की खुशी का आलम क्या होगा जब अल्लाह उसको अपने हाथ से डायरेक्ट नाम से नवाज रहा होगा, अपने हाथ से डायरेक्ट उसको इनाम दे रहा होगा। उसकी खुशी का अंदाजा लगाओ, उसकी मसरत का अंदाजा लगाओ कितनी हो। और बहुत ज्यादा गम अफसोस कर रहे होंगे वो लोग जिन्होंने दुनिया में रोजों को छोड़ा था, एक साइड में खड़े होंगे, एक साइड में, और कह रहे होंगे या लैतनी लम ऊता किताबिया, उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होंगे और ये कुरान की आयत पढ़ते जा रहे होंगे, या लैतनी लम ऊता किताबिया, ऐ काश कि मुझे मेरा नाम अमाल न दिया जाता, ऐ काश कि मुझे मेरा नाम अमाल न सौंपा जाता, मुझे मेरे बाएं हाथ में नाम अमाल क्यों दे दिया गया है, आज मैं अपने हिसाब व किताब को न जानता, आज मुझे मेरा नाम अमाल न दिया जाता। हमें अफसोस कर रहे होंगे वो लोग जो दुनिया में रोजों को छोड़ा करते थे, ये सारे ये तो उसका जो सवाल हो गया जो आपके सामने बताया है। अब रोजे का मकसद क्या है? तकवा। तकवा कहते किसको है? हम बहुत सुनते हैं हर खुतबे में और तकरीरों में, तकवा पैदा कीजिए, अपने दिलों में तकवा पैदा कीजिए, रोजा तकवा पैदा करने के लिए आया है। तकवा किस चीज का नाम है? तकवा किस चिड़िया का नाम है? हमने इसकी हदीस को इस्तेमाल किया, तकवा किस चीज का नाम है? सुनिए, सहाबा इकराम की महफिल बैठी हुई है, हजरत उमर फारूक भी मौजूद हैं, हजरत उबय इब्न काब भी बैठे हुए हैं, मजलिस शूरा लगी हुई है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं और सवाल जवाब हो रहे हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं,
आए उबई इब्न काब, तकवा किसको कहते हैं? तुम्हारे नजदीक तकवे की डेफिनेशन क्या है? सहाबा किराम का अंदाज देखिए, वो सवाल करते थे तो इस नियत से करते थे कि जो उसको मालूम है वो हमको मालूम हो जाए, जो हमें मालूम है वो सामने वाले को मालूम हो जाए। उनकी नियतें सवाल करने की ये हुआ करती थी। ये आज हमारी नियतें बदल गई हैं। हम अगर सवाल करते हैं सामने वाले को रुस्वा करने के लिए, सामने वाले को जलील करने के लिए, उसकी इज्जत को उतारने के लिए सवाल करते हैं, उसकी इज्जत को। तो सहाबा इकराम सवाल करते थे इल्म हासिल करने के लिए। तो हमारे फारूक ने क्या पूछा? आए उबय, तकवा किसको कहते हैं? तकवा क्या है? तो उबय इब्न काब ने फरमाया, आए उमर, उल्टा सवाल किया समझाने के लिए, आए उमर, क्या तुम्हारा गुजर कभी किसी खारदार रास्ते से हुआ है? तो क्या तुम्हारा गुजर कभी किसी कांटोदार रास्ते से हुआ है? कांटे ही कांटे हो, दाएं भी कांटे हो, बाएं भी कांटे हो, जमीन में भी कांटे बिछे हुए हो, और तुम्हारा गुजरना भी जरूरी हो। तो आए उमर, और तुम्हारे पैरों में चप्पल भी ना हो, तुम्हारे पैरों में जूता भी ना हो, तो आए उमर तुम उस रास्ते से कैसे निकलोगे? तुम्हारा गुजरना भी जरूरी है, तुम्हारा निकलना भी जरूरी है, रास्ते को क्रॉस करना भी जरूरी है, लेकिन चप्पल तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास जूता भी नहीं है, तुम कैसे रास्ता क्रॉस करोगे? उस रास्ते को तुम कैसे पार करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आए उबय, सुनो, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया। सुनो आए उबय इब्न काब, हमारे पैरों में चप्पल भी जब नहीं होगी, जूता भी हमारे पैरों में नहीं होगा, और हमारा गुजरना भी जरूरी है। तो आए उबय, सुनो, हम एक एक डाली को हटाकर गुजरेंगे, एक डाली को यूं करेंगे, दूसरे को इस तरीके से हाथ से हटाएंगे, कहीं कोई कांटा हमारे चुभ ना जाए, हमारे पैर को जख्मी ना कर दे, हमारे हाथ को जख्मी ना कर दे, हमारे दामन को ना फाड़ दे। हम उस कांटों से बचा कर निकलेंगे, अपने दामन को बचा कर निकलेंगे, अपने जिस्म को बचा कर निकलेंगे, कहीं कोई कांटा हमारे जिस्म को फाड़ ना दे, खरोच हमें नहीं आ जाए, जख्मी हम नहीं हो जाए, हम बचा कर निकलेंगे। अच्छा, हाँ। तो हजरत उमर इब्न काब ने फरमाया, आए उमर, ये दुनिया भी गुनाहों का बाजार है, ये दुनिया भी गुनाहों का दर है, कदम कदम पे तुम्हें गुनाह मिलेंगे, कदम कदम पे तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। तुम जैसे आगे बढ़ोगे गुनाह तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि दुनिया बाजार है, गुनाहों का बाजार है, हर जगह तुम्हें गुनाह ही गुनाह मिलेंगे। तुम उस गुनाहों से भी ऐसी बच कर निकल जाना, उन गुनाहों से ऐसी पार होकर तुम निकल जाना, जैसे खारदार रास्ते को पार करके तुम निकलते हो, जैसे कांटोदार रास्ते को पार करके तुम निकलते हो। आए उमर, तुम उस गुनाहों की दुनिया से, जो गुनाहों का दर है, गुनाहों का बाजार हर जगह लगा हुआ है, तुम उस गुनाहों से बचा कर निकल जाना। लेकिन सुनो, तुम इंसान हो, इंसान होने के नाते तुमसे गुनाह सद हो ही जाएंगे। तो इंसानों से गुनाह होते ही है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। तो क्या कहा? बतकाज़े बशरियत तुमसे गुनाह हो जाएंगे, तो तुम क्या करो? जब कांटा तुम्हारे पैर में चुभेगा, जब तुम्हारे जिस्म को जख्मी कोई कांटा कर देगा, तुम क्या करोगे? कहा, जब कोई कांटा हमारे जिस्म को जख्मी कर देगा, हम घर जाएंगे और उसकी मरहम पट्टी कर लेंगे, दवा इलाज हम कर लेंगे। तो कहा, आए उमर, जब तुम से गुनाह सरजद हो जाए, जब तुम गुनाह कर बैठो बहुत बचने के बाद, तो आए उमर, तुम उसकी मरहम पट्टी कर लेना, उसकी दवा इलाज तुम कर लेना उन गुनाहों की। तो उमर फारूक ने पूछा, आए उबय इब्न काब, गुनाहों की मरहम पट्टी क्या है? हम गुनाहों की मरहम पट्टी कैसे करेंगे? दवा इलाज हम कैसे करेंगे? तो कहा, आए उमर, अपने दामन को तुम फैला लेना, अपने रब के सामने तौबा और इस्तिगफार कर लेना, अपने रब के सामने तुम गिड़गिड़ा लेना, अपने गुनाहों की माफी मांग लेना, अपने गुनाहों की तुम तौबा कर लेना। ये गुनाहों की मरहम है, ये गुनाहों की पट्टी है, ये गुनाहों का दवा और इलाज है, ये गुनाहों का दवा इलाज है। तुम उसको अपने गुनाहों को माफी कराने के लिए अपने रब से तौबा कर लेना, अपने रब के सामने गिड़गिड़ा लेना। ये है तक़वे का माना। तक़वा इसको कहते हैं, आप देख लीजिए, तक़वे का माना।
आप जैसे ही मस्जिद से गुजरेंगे गुनाह शुरू हो जाएंगे आपसे। आप जैसे ही मस्जिद से निकलेंगे गुनाह शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलेंगे गुनाहों का बाजार आपको लगा हुआ मिलेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चाय की दुकान मिलेगी जिस पर बीड़ी भी बिक रही होगी, जिस पर तंबाकू भी बिक रही होगी। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको चूड़ियों की दुकान भी मिलेगी जिस पर हमारे घर की औरतें बैठी हुई होगी। लिपस्टिक की दुकान भी मिलेगी जिस पर हमारे घर की औरतें बैठी हुई होंगी और खरीदो फरोख्त हो रही होगी, मर्दों से खरीदारी हो रही होगी। मर्दों के सामने अपने औरतें अपने हाथों को उनके हाथ में देकर खरीदारी भी कर रही होंगी, अपने हाथों को उनके हाथ में देकर चूड़ियां भी पहन रही होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो तुमको शराब की दुकानें दिखती हुई नजर आएंगी, तुमको शराब बिकती हुई नजर आएगी। आई उम्र ये दुनिया गुनाहों का बाजार है, ये दुनिया गुनाहों का घर है। तुम अगर चाहते हो कि तुम जहन्नम से आजाद हो जाओ, तुम अगर चाहें तो अल्लाह ताला तुमको अजाब नहीं दे, तुम्हें अजाब कब्र से महफूज कर ले, तुम्हें अजाब कब्र से बचा ले। तुम इन गुनाहों को पार करो, गुनाहों से बचते हुए दुनिया से तुम निकल जाओ, गुनाहों से बचते हुए दुनिया को तुम पार कर दो। और जब तुमसे गुनाह सरसद हो जाए, 2-4 गुनाह तुम कर बैठो तो अपने रब के सामने तौबा और इस्तिगफार कर लिया करो, अपने रब के सामने गिड़ा लिया करो। ये गुनाहों की मरहम है, ये गुनाहों की पट्टी है। आइए अब 2-3 चीजें और मैं आपके सामने रखूं। हम जो रोजे रख रहे हैं, तकवा हमने सिर्फ समझा है, इस पर अमल हमारा नहीं है। रमजान के रोजे जो फर्ज हो चुके हैं हमारे ऊपर, आज जिनकी उम्र 30 साल की है या 50 साल की है, तो वो लोग गौर करें कि उनके दिलों में कितना तकवा पैदा हुआ। अगर वो अपनी उम्र के 20 साल से रोजे रख रहे हैं, 20 साल की उम्र से, और आज उनको 30 साल हो चुके रोजे रखते हुए, तो वो जरा गौर करें कि उनके दिलों में कितना तकवा पैदा हुआ, कितनी परहेजगारी पैदा हुई, उनके दिलों में कितना तकवा पैदा हुआ। वो जरा गौर करें इस चीज पर। हमें सिर्फ सुन लेते हैं रस्म अदा करने के लिए, लेकिन अमल हमारा उस पर नहीं होता है। माफ कीजिएगा, हम हर जगह इस बात को कह रहे हैं, हर जगह इस टॉपिक को हम छेड़ रहे हैं। इसीलिए अगर तकवा हमारे दिलों में होगा तो माफ कीजिएगा हम माले हराम से भी बचेंगे। अगर तकवा हमारे दिलों के अंदर होगा तो हम हराम खाने से बचेंगे। हम अपने घरों में जो सहरी बनाते हैं, हम अपने घरों में जो इफ्तारी बनाते हैं, माफ कीजिएगा बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, आप किस चीज पर बनाते हैं? आपके घरों की सहरी भी, आपके घरों की इफ्तारी भी हीटर पर बनती है जिसका आप बिल नहीं देते हैं, जो चोरी की लाइट है, आप उस पर अपने खाने को हराम बना कर खाते हैं। क्या हमारे रोजे कबूल हो रहे हैं अल्लाह के यहाँ? तकवा कहाँ रह गया है? तकवा बचा ही कहाँ है? धड़ल्ले के साथ हम इफ्तारी बनाते हैं और खाते हैं उस पर, और हमें अपने रोजों की कोई फिक्र नहीं होती है। यकीन है कि अल्लाह हमारे रोजे कबूल कर रहा होगा, उम्मीद है अल्लाह कर रहा होगा, उम्मीद है, हमें उसकी रहमानियत पर तो उम्मीद हो जाती है, हम उसको रहमान तो समझ लेते हैं, लेकिन उसको हम कहार नहीं समझते हैं। जहाँ वो रहमान है, जहाँ उसने अपने आप को रहमान कहा है, जहाँ उसने अपने आप को रहीम कहा है, वहीं उसने मुबालगे के साथ अपने आप को कहार भी कहा है। जहाँ वो रहम करने वाला है, वहीं पर वो धैर्य के पहाड़ भी तोड़ने वाला है, तोड़ने पर कादिर है। आप बताइए, एक बाल्टी आपके पास रखी हुई है, अगर उस एक बाल्टी पानी में एक कतरा अगर आप पेशाब का डाल दें और आपसे कहें कि इससे आप वुज़ू कर लीजिए, तो आप उससे वुज़ू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है इस बात का कि उस पानी से हमारा वुज़ू नहीं होगा, क्योंकि उसमें कतरा पेशाब का जो गिरा है उसने पूरे पानी को नापाक कर दिया है, उसने पूरे पानी को बर्बाद कर दिया है। हम उससे वुज़ू चाहे कितना बनाएं, हमारा वुज़ू नहीं होगा, उल्टा हमें गुनाह मिलेगा। हम आपसे क्या कर लीजिए, हो जाएगा, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, आपके वुज़ू हो जाएगा आपका। आप कहेंगे आप पागल हो चुके हो, उस बाल्टी में पेशाब का कतरा मिला हुआ है, उसको आपका कैसे हो जाएगा? अरे हो जाएगा, आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, उम्मीद नहीं है अल्लाह से, अल्लाह बहुत बड़ा आपके कर लेगा वो। आप उस बाल्टी से वुज़ू नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा वुज़ू नहीं होगा। जब आपको इस चीज पर इतना
बात पर यकीन क्यों नहीं है कि अगर हराम लुक़मा अपने जिस्म में उतार रहे हैं, अपने रब के नीचे, हमारे रोज़े भी कैसे कबूल लगा रखेंगे, नमाज़ें कैसे हमारी कबूल हो जाएंगी, हमारी ज़कातें कैसे कबूल हो जाएंगी। सुनिए, एक बड़ा दर्दनाक वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, और शायद ये वाक़या आपने पहले कभी ना सुना हो। शायद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है, एक बूढ़ी औरत। और सुनो इस वाक़े को हराम खाने वालों, सुनो इस वाक़े को हराम के धंधे करने वालों, सुनो। एक बूढ़ी औरत आती है, उस जमाने की औरतों में भी, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था, कितनी परिस्कारी हुआ करती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास आती है और आकर कहती, इमाम साहब, हाजी एक मसला मालूम करने के लिए आई हूँ। कहा, क्या मसला बताओ। कहा, मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा समझते हैं आप? चरखा सूद, मैं सूद फिराती हूँ। कभी कभी दिन में चलाती हूँ और कभी कभी ओवर टाइम करती हूँ, रात में भी सूद को फिराती हूँ, मैं रात में भी चलाती हूँ चरखा, और वो चलाकर मैं उसकी कमाई अपने मालिक से लेती हूँ और उससे अपना गुजर बसर करती हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, इसमें क्या है, कोई बुराई नहीं है इसमें। कहा, मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें बुराई है या नहीं, मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि कभी कभी मेरे पास चरखा चलाने के लिए होता है, लेकिन जलाने के लिए तेल नहीं होता है। मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके चिराग की रोशनी मेरे घर में आ रही है, मेरे घर में आ रही है। मैं जब बिस्तर पर जाती हूँ और उस पड़ोसी के घर से जो रोशनी आती है, जब मैं उसको देखती हूँ तो अपना चरखा लेकर मैं उसकी रोशनी में चली जाती हूँ और चरखा चलाती हूँ। इमाम साहब, अगर मैं अपने पड़ोसी के घर से आने वाली रोशनी में चरखा चलाऊं और ये चलाकर मैं उसकी कमाई अपने मालिक से लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम हो गई। मैं उससे तेल मांगने के लिए नहीं गई हूँ, मैंने उसके तेल की चोरी भी नहीं की है, वो ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। मैं क्या करूँ? कहीं मैं उसकी रोशनी में चिराग जल रहा है, चरखा चलाकर मैं जो कमाई खा रही हूँ, कहीं मैं वो खाकर अज़ाब कब्र की मसले को नहीं बन जाऊंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं चली जाऊंगी। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, खातून, आय औरत, तेरे सवाल ने आज अहमद इब्न हम्बल के इल्म को शर्मिंदा कर दिया है। काबे के रब की कसम, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। कहने लगी औरत, फिर मैं ये मसला किससे पूछने के लिए जाऊंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई और नहीं है, फिर मैं मसला किससे मालूम करने के लिए जाऊंगी। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, खातून सुन, सब्र कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक कयास का ताल्लुक है, जहाँ तक कयास का मामला है, तो मैं अपने इल्म की रोशनी में कयास लगाकर ये कह सकता हूँ कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लगा रहा है। क्यों? क्योंकि तू उससे रोशनी मांगने के लिए नहीं गई है, तूने उससे तेल नहीं मांगा है, तूने उसके तेल की चोरी भी नहीं की है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है, उसके घर में भी दीवार नहीं है, वो रोशनी ऑटोमेटिक तेरे घर में आ रही है, तो उसमें तेरा क्या कसूर है? बजाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं लग रहा है। लेकिन सुन मेरी माँ, अगर तेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है तो तुम उससे भी बच जाओ तो बेहतर है, उससे भी तुम परहेज कर लो तो बेहतर है, उससे भी तुम बच जाओ तो बेहतर है। क्योंकि वो दूसरे की रोशनी में बैठा, तुमने उससे मांगा नहीं है, लेकिन तुमने उसको इजाजत भी नहीं दी, वो दूसरे की रोशनी है, इससे तुम बच जाओ तो बेहतर है। उस जमाने की औरतों में, और वो भी बूढ़ी औरतों में, कितना तकवा हुआ करता था, कितनी परेशानी हुआ करती थी। जब और पास जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लोगों से पता लगवाया ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ, जो मेरे ज़हन में नहीं रहा। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं,
ज़रूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, ज़रूर इसका बाप कोई आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपने बच्चों के अंदर बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की दहलीज में पहुंचने के बाद इस बुढ़िया की हालत ये है, इस औरत की हालत ये है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सवाल कर रही है कि मैं चरखा चलाऊंगी तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें और ऐसे लोगों के रोजे अब से टकराए और अल्लाह कबूल न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक हम नमाजें पढ़ते हैं, एक हम रोजे रखते हैं, हम जो में सर पर सजदा हुआ जमीन पर तो आसमान से आने लगी निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक हमारी नमाजों का हाल ही है, एक और हुआ कितनी तड़प होती थी उसको हराम से बचने की, कितनी फिक्र हुआ करती थी हराम से बचने की। इस औरत के सवाल पर गौर करो, इस औरत के सवाल पर इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास आकर क्या सवाल वो कर रही है, उसके सवाल पर गौर करो और अपनी नमाजों पर गौर करो, अपने खाने पर गौर करो, अपने पानी पर भी गौर करो। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खिला रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं, अपने बच्चों को। मेरे प्यारे साथियों, हराम से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमने सुनाई थी वो हदीस, एक आदमी, एक शख्स था, रात में नमाज आता है, किसी मस्जिद में क़याम पसीर होता है, रात में रुकता है और रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मैं तुझसे इस चीज का सवाल कर रहा हूँ, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। लेकिन गैब से आवाज आती है, आसमान से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, फरिश्ते भी कहते हैं अल्लाह तेरा बंदा दुआ कर रहा है, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, सारे लोग सोए हुए हैं, तेरा बंदा अपने दामन को फैला कर दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह इसकी दुआ को तो कबूल कर ले। अल्लाह कहता है फरिश्तों, मेरा बंदा जो खा कर आया वो हराम का, मेरा बंदा जो पी कर आया वो हराम का, मेरे बंदा जो पहन कर आया वो हराम का, उसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो भी हराम का। हम इसकी दुआ कबूल करें तो कहाँ से करें, हम इसकी दुआ सुने तो कहाँ से सुने, हम इसकी दुआ कैसे कबूल कर लें। मेरे प्यारे साथियों, उसकी दुआ अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है और उसको हटा देता है, उसकी दुआ फिर कबूल नहीं होती है। हमारी नमाज़ें भी कबूल नहीं होगी अगर हमारे यहाँ हराम खाएंगे, हमारी नमाज़ें भी कबूल नहीं होगी। सुना होगा आपने, एक वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूँ। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है। ये वाक़या हमारे दिलों को झिझोड़ देता है, ये वाक़या हमारे कलेजों को हिला देता है। कैसा तक़वा और कैसी परहेज़गारी थी और कितना डरा करते थे वो लोग, कितना। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है, उनकी बीवी हामिला है, पेट में हमल है, बच्चा है, 4 दिन हो गए उनकी बीवी ने कुछ नहीं खाया। आप अच्छी तरह कैसे जानते होंगे, एक प्रेग्नेंट औरत जब कुछ खाएगी नहीं तो उसके पेट का बच्चा वैसे ही मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकता है। 4 दिन हो गए उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने कुछ नहीं खाया, कुछ खाई नहीं उनके पास, क्या खिलाएंगे अपनी बीवी को, क्या खिलाएंगे अपनी बीवी को, कुछ नहीं है उनके पास। 4 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया, अपनी लोनी को बुलाती है, इधर आओ। हाँ जी, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरे पेट में हमल है। कहा तुम ये भी जानती हो कि मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ मैं ये भी जानती हूँ। एक काम करो, बैतुल माल चली जाओ और बैतुल माल के कैशियर से तुम ये कह देना खलीफा की बीवी ने मुझको भेजा है, खलीफा की बीवी ने, और खाएंगे 1 प्याला दूध का सवाल मैं आपसे करती हूँ, 1 प्याला दूध मुझे दे दीजिए वरना मेरे पेट का बच्चा मर जाएगा। वो लौंडी जाती है बैतुल माल की तरफ और बैतुल माल के कैशियर से कहती है उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने दूध का प्याला मंगाया है क्योंकि वो हामिला है, उनके पेट में हमल है, अगर उनको ये दूध का प्याला नहीं दिया गया तो उनके पेट का बच्चा मर जाएगा। जब इस तरह कैशियर ने फौरन दूध का प्याला तैयार किया और कहा लो तुम जाकर पिला देना। वो लौंडी आती है, रात की तारीकी है, तहज्जुद की नमाज का वक्त है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ वुज़ू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे थे।
अंदर आते हुए देखा, कहा इधर आओ। कहा जी तुम्हारे हाथ में क्या है? छुपाने की कोशिश की, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज की जिद की आगे लौंडे की न चल सकी। प्याला खोल दिया, लो ये दूध है। कहाँ से लाई हो? बैतुल माल से लाई हूँ। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी ने मंगाया है। आज मेरी बीवी, ये दूध तुमने मंगाया है? हाँ मैंने मंगाया है। अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। क्या परमिशन लेती आपसे? आप तो मना कर देते। हाँ फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मंगाने की? हाँ अपने लिए नहीं मंगाया। आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे पेट का बच्चा जिंदा कैसे रह सकता है? आए मेरे शौहर, मैंने ये दूध अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए मंगाया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं बीवी तुम्हारी जुमले मेरे दिल को पिघला नहीं सकते हैं, ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। दूध का प्याला छीना और बैतुल माल की तरफ जाने लगे। दामन पकड़ लेती है बीवी और कहती है हाय मेरे प्यारे शौहर, हाय मेरे हस्बैंड, ये जुल्म मत कीजिए। अगर मुझे ये प्याला दूध का नहीं दिया गया तो मेरे पेट का बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? वो तो पेट में ही दम तोड़ देगा। मैं महसूस कर रही हूँ ये बच्चा मरने की कगार पर है। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा मेरा मर जाएगा। हाय मेरे शौहर, ये दूध का प्याला मुझे दे दीजिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज रुके, नजरें आसमान पर डाली, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बीवी की तरह मुखातब होकर कहते हैं ये जुमले उमर इब्न अब्दुल अजीज की जबान से जो निकले हमारे कलेजों को हिला देते हैं, हमारे दिल को फाड़ कर रख देते हैं। कहते उमर इब्न अब्दुल अजीज, हाय मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध जो तमाम मुसलमानों की अमानत है, ये एक प्याला दूध जो तमाम मुसलमानों की अमानत है, और अमानत में खयानत करके सिर्फ एक औरत के लिए दूध लाया गया है। मैं खलीफा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुमको ये दूध का प्याला दे दिया गया है। आए मेरी बीवी, अगर इस एक प्याले अमानत में खयानत के दूध से, अगर इस एक प्याले हराम दूध के पीने से तुम्हारे पेट का बच्चा बच रहा है तो आए मेरी बीवी कह दो इस बच्चे से कि उसके बाप को ये बच्चा नहीं चाहिए। मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन तुम्हें हराम लुकमा खिलाना गवारा नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा जो हराम के कतरे से जिंदगी पाए और बड़ा हो, ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरी बीवी कह दो इस बच्चे से उसके बाप को बच्चा नहीं चाहिए। मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन हराम लुकमा खिलाना गवारा नहीं है। ये वाक़यात हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? ये हदीस से हमें क्या मैसेज दे रही है? हमें क्या पैगाम दे रही है? मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, गौर कीजिए। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कुछ खजूर आ जाते हैं। खजूर उनका गुलाम लाया, गुलाम काफिर था, उनका गुलाम काफिर था। कुछ खजूर उसको मिल गई, लेकर आया और खा ली, लेकिन वो खजूर हराम नहीं थी, नहीं मालूम था, जानते नहीं थे। उठाई और खा ली। गुलाम ने कहा आए मेरे आका, आप रोजाना हमसे पूछते थे आज कैसे कहाँ से हलाल क्या करके लाए हो, हलाल के आराम की और हलाल की होती थी, आप उसको खा लिया करते थे। आज आपने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि बड़े भूखे थे वो, इसलिए उनको बहुत भूख लग रही थी और उन्होंने देखा खजूर लाओ, जल्दी से लाओ, उसको खाई और खा। लेकिन वो खजूर हराम की थी। सुनिए मंजर देखिए, वो खजूर हराम की थी। कहाँ से लाए हो? कहा एक मेरा दोस्त जा रहा था, उसके साथ उसकी बीवी भी जा रही थी और उसकी बीवी हामिला थी, उसका पेट बड़ा था, पेट उसका बाहर था। तो मैंने मजाक में उससे ये कह दिया भाभी को ले जा रहे हो? हाँ लड़का हो। मजाक में, मुझे क्या मालूम कहाँ क्या होगी, मैंने अंदाजा लगाया ऐसे मजाक बोल दिया लड़का होगा। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पेट देखकर बता देता हूँ कि लड़का होगा लड़की होगी, मैं सब बता देता हूँ।
इत्तेफाक से 2 महीने के बाद उसको बेटा हो गया। और अब जब बेटा उसके हुआ तो वो मुझे बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बाबा समझने लगा, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बाबा समझने लगा। और खजूर लाया, मुझे उसने गिफ्ट में ये खजूर दे दी, मुझे गिफ्ट उसने दे दिया। कहा अच्छा, कहा तब तो ये हराम हुआ। कहा सुनिए, एक खजूर खाई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, वो भी धोखे से, जानते नहीं थे कि ये हराम की है, आई सामने घूमे थे और खा गए। एक खजूर हराम की खाई, अपने गुलाम से कहते हैं ये खजूर जो मैंने हराम की खा ली है, अब इस खजूर को मैं अपने पेट में रहने नहीं दूंगा, पानी लेकर आओ। अपने गुलाम से पानी मंगाते हैं और पेट भर कर पानी पी लेते हैं और अपनी 3 उंगलियों को अपने हलक में डालकर क्या करते हैं, थोड़ी सी खजूर निकालते हैं, फिर तय करते हैं, थोड़ी सी खजूर निकालते हैं, 3-4 बार तय की और उस वक्त तक तय की जब तक कि वो खजूर पूरी निकल नहीं गई और इत्मीनान नहीं हो गया कि पूरी खजूर निकल गई होगी, उस वक्त तक क्या करते रहे। और उसके बाद फरमाया सुनो, एक इंसान जब कोई हराम का एक लुक़मा खाता है, ये बुखारी के हदीस सबको सुनना चाहिए। कहा एक इंसान जब कोई शख्स हराम का एक लुक़मा खाता है और तौबा नहीं करता है, हराम का लुक़मा खाने के बाद तौबा नहीं करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता रख देता है, एक ब्लैक पॉइंट। आप कलम से लिखते होंगे आप लीजिए और कापी पर उसको आप इस तरीके से ऐसे रख दीजिए, इस तरीके से ऐसे, और जब हटाएंगे आप तो एक नुक्ता, एक पॉइंट वहाँ पर छूट जाएगा, एक पॉइंट वहाँ पर बन जाएगा, एक पॉइंट। कहा जब कोई हराम का एक लुक़मा खाता है और फिर तौबा नहीं करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता रख देता है, सियाह नुक्ता रख देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो उस नुक्ते को मिटा देता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है और ऐसे ही अपने आप को छोड़ देता है तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को सियाह कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का दिल पूरा का पूरा सियाह हो जाता है, उसका दिल पूरा का पूरा जब काला पड़ जाता है तो इंसान के दिमाग से ये सोचने की ताकत निकल जाती है, ये माल जो मेरे पास आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये हलाल का है या हराम का, आने दो, जहाँ से भी आ रहा है आने दो, जहाँ से भी मिल रहा है मिलने दो। मेरे प्यारे साथियों, इंसान अगर हराम का लुक़मा जब खाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर सियाह नुक्ता रख देता है, और अगर तौबा कर लेता है तो उसके नुक्ते को मिटा देता है, और अगर तौबा नहीं करता है, तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को सियाह काला कर देता है, फिर उसका पूरा दिल ब्लैक और काला पड़ जाता है। फिर इंसान के दिमाग से इस सोचने की, इस समझने की ताकत खत्म हो जाती है, ये माल आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, जो चीज़ भी हम खाएं हमें सोचना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हमने जो बताई है ये बातें आपको बहुत ही कीमती हैं। हमारे रोज़े कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें इन चीज़ों पर गौर करना है, हम हमारे हराम से हमको बचना है, हमें अपने रोज़ों की कद्र करना है, हमें अपने रोज़ों को बर्बाद नहीं होने देना है। हम बहुत मेहनत से रोज़े रख रहे हैं, क़यामत के दिन हम जब अच्छी उम्मीद लेकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हमें हमारा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। उस वक्त आपकी हालत क्या होगी, जब फरिश्ता आएगा और आपको हाथ में नामा अमाल दिखा देगा, उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी। इसलिए अपनी दुनिया की बातों को आप खुश कर दीजिए, दुनिया की बातों को, अपने रोज़ों को, अपनी नमाजों को, अपने हज को, अपनी ज़कातों को हराम की भेंट पर चढ़ाइए और हराम की भेंट पर चढ़ाइए। मेरे साथियों, हम दुआ करते हैं कि हम सबको हमारे हराम से बचा लें, हम सब नफ़ा पैदा करते हैं, हम सबको हमारे हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हम सबको हम जो